Hello everyone, welcome back to the book series. And as I have already uploaded the chapter one, the episode one, and let's continue with the episode two. And this series basically is targeting the Mental Therapy book, which is written by me, a review book of Mental Therapy by Dr. Dilip Kumar PT. So let's continue. To know more about the this book and how to order place the order, you can go and search the previous video of mine. Let's continue with the chapter two. Previous chapter was introduction of manual therapy as a part one. Let's continue with the part two, the the principles, spinal movement. Manual therapy terminology. Before we proceed to the chapter two, let's continue with some manual therapy terminologies specifically used for the different types of the motion. The accessory motion, ये वो मोशंस होती हैं accessory जिनको हम accessory movements भी कहते हैं जो विद इन द ज्वाइंट्स जो है वो मौजूद होती हैं या यूज्ड होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रोड्यूस नहीं की जा सकती आइसोलेटेड सोलो के तौर पे. So the those motion that are available in a joint that may be accompany the classic movement, जो आपकी primarily movements हैं, active movements हैं, उनके साथ तो ये जनरेटेड होती हैं, accessory हैं, but not as a functional, not as a physiological. ठीक है, they are that's why they are called the accessory. But we passively produce isolated from the classic movement. Accessory movements are essential to normal full range of motion. Let's suppose if I explain in a very layman language कि whenever we perform the shoulder, जब हम shoulder abduction या shoulder की movement, मैं सिर्फ shoulder joint का कह रहा हूँ, कोई भी body का joint हो सकता है. जब भी हम shoulder joint की movement करते हैं तो mainly movement हमारे पास flexion, abduction, extension, internal external rotation सब है, ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ जब हम जो भी मूवमेंट करें when we do abduction, जब हम abduction करते हैं तो humeral head also glides inferiorly, which is the accessory movement. ठीक है, जो कि आपकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट है, accessory movement है. वो आपके हाथ में नहीं है, इनवॉलंटरली है. वो एक्टिव मूवमेंट जो आप एबडक्शन कर रहे हो उसके साथ हो रही है, लेकिन है इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव द फुल रेंज. ठीक है, दिस इज हाउ आई कैन एक्सप्लेन. So the accessory motion, then we have a component motion. Component motion, the motion which basically takes place in a joint complex or related joint to facilitate a particular active motion. वो मोशन जो किसी ज्वाइंट कॉम्प्लेक्स में हो रही है, कंपोनेंट है ना, मतलब उसका एक कंपोनेंट है, एक उसका हिस्सा है. वो मोशन जो बेसिकली हो जब ज्वाइंट कॉम्प्लेक्स में हो या रिलेटेड ज्वाइंट में हो, लेकिन जो मूवमेंट आप कर रहे हो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हो. तो इट कैन आल्सो रेफर टू बेसिकली द इंडिविजुअल movement of a distinct point within a larger system. Just like shoulder we have a complex. Whenever we do a shoulder abduction, तो सिर्फ शोल्डर में आपका जॉइंट जो शोल्डर ग्यूलिनो जॉइंट है वो मूव नहीं करता. आपका स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट भी मूव करता है, आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर भी मूवमेंट सारी होती है. मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. सो इट आल्सो प्रेफर बेसिकली the individual movement of a distinct part within a larger system or a structure. So it involves basically analyzing the understanding how each component contribute to overall motion or a function, specifically when we deal with the some biomechanical perspective or in order to evaluate any कंडीशन. लेट सपोज कॉम्प्लेक्स में से, अब जैसे क्लोज पेक पोजीशन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, वो हर शोल्डर कॉम्प्लेक्स के हर जॉइंट की अलग है. स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट की अलग है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की अलग है, एसी जॉइंट की अलग है और सीसी जॉइंट की अलग है. जो आपका स्केपुलोथोरेसिक है वो तो फिर भी एक इमेजिनरी जॉइंट है. तो कंपोनेंट मोशन बेसिकली किसी जॉइंट कॉम्प्लेक्स में होती है या रिलेटेड एडजेसेंट जॉइंट में भी तो होती है, लेकिन आप जो एक्टिव मोशन करते हो उसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत जरूरी है. तरह मैंने आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दिया था. अगर आपका स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट भी हाइपोमोबाइल है, रिस्ट्रिक्टेड है, इट कैन आल्सो व्हाट आई कैन से इट आल्सो कैन अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट. भले ही थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन करे लेकिन अफेक्टेड होगा. ठीक है. क्लोज पेक पोजीशन और ओपन पेक पोजीशन, देयर आर द फाइव जॉइंट्स पोजीशन गिवन बाय द फ्रेडी कल्टन बोर्ड. लेकिन हम सिर्फ प्राइमरली दो को यूज करते हैं, रेस्टिंग, नॉन रेस्टिंग, एक्चुअल रेस्टिंग, देन क्लोज एंड ओपन. लेकिन हम सिर्फ मेनली दो पढ़ते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल इन्हीं का ज्यादा यूज होता है. द क्लोज पेक पोजीशन, मेडिकल की सबसे अच्छी बात यह भी है कि मेडिकल में टर्म्स खुद अपनी डेफिनेशन बता रहे होते हैं. क्लोज पेक पोजीशन, एसी, पहले तो पोजीशन किसकी है, ज्वाइंट की पोजीशन है, तो यू कैन कॉल इट द क्लोज पेक पोजीशन ऑफ अ ज्वाइंट. इनडायरेक्टली किसी भी ज्वाइंट का हो सकती है. एसी ज्वाइंट पोजीशन, आप लास्ट से स्टार्ट करें. एसी ज्वाइंट पोजीशन जिसमें अब एक ज्वाइंट कम से कम दो सरफेसेस से बनता है, तो एसी ज्वाइंट पोजीशन जिसके जो दोनों ज्वाइंट के सरफेसेस हैं वो आपस में इतने पैक्ड हैं, क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर हैं,
कि वहां पर मजीद मूवमेंट की गुंजाइश नहीं है बेसिकली, दैट स्टेट इज क्लोज पेग पोजिशन। ठीक है, इसी तरह करके लूज पेग पोजिशन है, ओपन पेग पोजिशन भी इसी तरह करके। तो इफ आई रिपीट, एक ऐसी ज्वाइंट की पोजिशन जिसमें दोनों ज्वाइंट के आर्टिकुलर सर्फेसेस इतने आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं कि मजीद मूवमेंट की पोजिशन नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो या इनडायरेक्टली व्हेन यू मेक द क्लोज पेग पोजिशन, all the surrounding structures they become very tight, the muscle, ligaments, and all. So the position of the maximum congruency of a joint so that it is locked. Let's suppose जब आप घुटना ओपन करते हो, नी एक्सटेंशन करते हो, ठीक है, घुटना जब ओपन करते हो तो नी जब तक लॉक नहीं होगा तब तक स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल नहीं होगा तो उसके ऊपर आप वेट नहीं दे पाओगे। तो इट बिकम्स नी एक्सटेंशन इज अ क्लोज पेग पोजिशन ऑफ द नी ज्वाइंट। ठीक है, और नी एक्सटेंशन इज आल्सो लॉकिंग ऑफ अ नी ज्वाइंट, जिसके साथ नो डाउट टिबिया रोटेट करती है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो द पोजीशन ऑफ अ मैक्सिमम कॉन्ग्रुएंसी जिस ज्वाइंट में हो, दैट अल्टीमेटली इट बिकम्स द लॉग एंड इट बेसिकली स्टैटिकली एफिशिएंट फॉर द लोड बेरिंग। फिर आप उसके ऊपर लोड बेसिकली दे सकते हो इनडायरेक्टली। तो इट इज ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अ जॉइंट सर्फेसेस, जो जॉइंट के दो सर्फेसेस हैं, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल है। कॉन्वेक्स कॉन्केव सर्फेसेस है। नी जॉइंट की अगर आप मिसाल दें तो नी में आपके पास टिबिया और फिबुला के जो कंडाइल्स हैं, टिबिया के प्लेटू हैं, फीमर के जो कंडाइल्स हैं, ये आर्टिकुलर सर्फेसेस, वो आपस में इतनी ऐसी उनकी अरेंजमेंट हो जाती है कि आपस में मैक्सिमली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं इसके साथ। और उसका अवसर ऐसा होगा कि उसको बनाने के लिए सराउंडिंग स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर है, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन, वो भी उनमें टेंशन टाइट हो जाती है। तो दिस पोजिशन टिपिकली occurs at the extreme end range of a joint and also provide the maximum stability. लूज पेग पोजिशन, इसका रिवर्स, एक सी ज्वाइंट की पोजिशन जिसमें जो ज्वाइंट आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं है, लूजली है। इट मींस सराउंडिंग की स्ट्रक्चर लूज है, उसमें टेंशन इतनी नहीं है, दे आर रिलैक्स। तो पोजिशन ऑफ अ ज्वाइंट जहां पर कैप्सूल लिगामेंट जो उस ज्वाइंट को बेसिकली सराउंड कर रहे हैं, दे आर मोस्ट रिलैक्स, स्लैक, नॉट कॉन्ट्रैक्टेड। सो अल्टीमेटली इज बेसिकली द अनलॉक। तो स्टेटिकली अगर हम कहें तो इट इज इनसफिशिएंट फॉर अ लोड बेरिंग। अब इस ज्वाइंट के ऊपर जिस तरह नी को आप थोड़ा सा फ्लेक्स करें, नी एक्सटेंडेड था पहले, लॉक था, अब आप 20 डिग्री नी फ्लेक्शन करें, उसके ऊपर वजन दे, आप नहीं दे पाएंगे बिकॉज नी प्रॉपरली लॉक्ड नहीं है, वो अनलॉक्ड है। तो उसको पहले लॉक करना पड़ेगा ताकि स्टेबिलिटी आपकी मैक्सिमम आ सके। और वहां पर जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होंगी उसकी जो टेंशन है उसमें कम होगी और वो ज्यादातर रिलैक्स होंगे इनडायरेक्टली, जो भी लिगामेंट्स और मसल्स हैं एसेट। तो दिस पोजीशन टिपिकली अकर्स, ये तब होगी जब आप उस ज्वाइंट के मिड रेंज में आते हो। टाइट क्लोज पे कब होती है? जब एंड रेंज में आते हो। मिड रेंज में जब आओगे तो ये लूज हो जाएगी या अपो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज क्या है, क्लोज पे पोजीशन में देयर इज नो फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ अ मोबिलिटी, यहाँ पर फर्दर पॉसिबिलिटी है। तो दिस पोजीशन बेसिकली अलो अ ग्रेटर मोबिलिटी एंड दिस पोजीशन इज आल्सो यूज्ड फॉर द ज्वाइंट मोबिलाइजेशन एक्सेट्रा, बट लेस स्टेबल, बट ये स्टेबल है, लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू द क्लोज पे। आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट डिसफंक्शन। दिस वर्ड जिस वर्ड से पहले आता है, दिस हो गया, ए हो गया, वो उसकी नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है। दिस फंक्शन, फंक्शन का ना होना, ज्वाइंट डिसफंक्शन, ज्वाइंट के फंक्शन का ना होना। तो स्टेट ऑफ अल्टर्ड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली अगर किसी एक्सपेक्टेड नॉर्मल मोशन में कोई भी रुकावट है, एबेरेंट है, लेट सपोज वो डिसफंक्शन हो गया। एक ज्वाइंट है, लेट सपोज वो 10 डिग्री उसकी ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन है, लेकिन वो मोबाइल 8 तक करता है, 2 डिग्री नहीं कर रहा, तो वो भी एबनॉर्मल में आएगा। दैट इज आल्सो अ जॉइंट डिसफंक्शन। जॉइंट डिसफंक्शन एवरी टाइम नॉट कंसिडरिंग की ज्वाइंट का टूट जाना, इट्स नॉट लाइक दैट। ज्वाइंट का ठीक से काम ना भी करना ज्वाइंट डिसफंक्शन में आता है। तो दिस कैन आल्सो इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शन। अब वो रुकावट उसमें हो सकती है, उसकी मूवमेंट में रुकावट हो सकती है, पेन हो सकता है, सूजन हो सकती है, ज्वाइंट डिसफंक्शन में ही आएगा। ठीक है, तो वो अगर विद इन द ज्वाइंट है, लेट सपोज नी ज्वाइंट का जो लिगामेंट्स अंदर एसीएल एमसीएल वो टूट जाए, तो वो भी ज्वाइंट डिसफंक्शन। लेकिन इंट्रा कैप्सुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कोई बाहर का हिट हो, ट्रॉमा हो, स्वेलिंग हो, वो भी आ सकता है, तो ज्वाइंट डिफरेंस हम उसको कहेंगे। ठीक है, ज्वाइंट प्ले, joint play is kind of like the accessory movement because they are not under our voluntary control। एक ऐसी मूवमेंट जो वॉलंटरली करते हैं, खुद से हमारे हाथ में होता है, तो उसके हम वॉलंटरली फिजियोलॉजिकल मूवमेंट कहेंगे। एक हमारे हाथ में नहीं है, जिस तरह एक्सेसरी है, तो उसको हम ज्वाइंट प्ले या आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स कह सकते हैं। बट दे अकर इन अ रेस्पॉन्स टू आउटसाइड फोर्स, मतलब वो हमारे हाथ में तो नहीं है लेकिन खुद से भी नहीं होती। खुद से नहीं होती, ये होती है जब कोई आउटसाइड का फोर्स आके काम करेगा, उसके रेस्पॉन्स में होती है। तो दीज आर वेरी स्लाइट पैसिव मूवमेंट जो यूजुअली
ज्वाइंट के अंदर होती हैं, बियॉन्ड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एंड दिस मूवमेंट बेसिकली इंक्लूड जस्ट लाइक द ग्लाइडिंग स्लाइडिंग, जस्ट लाइक हम डिस्कस किया था, दीज आर काइंड ऑफ द एसेसरी मूवमेंट। ठीक है, तो द ज्वाइंट प्लेज ऑफन असिस्ट, इनको असिस्ट भी किया जाता है मैन्युपुलेटेड ड्यूरिंग द डिफरेंट मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स, ज्वाइंट मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगर जब आप ज्वाइंट की एब्डक्शन, शोल्डर की एब्डक्शन करोगे तो ह्यूमरल हेड जो है वो ग्लाइड करेगा इंफीरियरली। तो वहां से दूसरी बात ये पता चलती है कि अगर किसी की शोल्डर एब्डक्शन रिस्ट्रिक्टेड है तो मतलब इंफीरियरली ग्लाइड किया जाए इनडायरेक्टली, तो वो जो इंफीरियर ग्लाइड है वो बेसिकली ज्वाइंट प्ले मूवमेंट है। तो और अकॉर्डिंग टू द फ्रेडी कल्टनबोर्न, उन्होंने एक रूल भी दिया था कि हाउ टू असिस्ट द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड, किस तरफ ग्लाइड रिस्ट्रिक्टेड है उसके लिए भी उसने एक रूल दिया था, उसमें भी वो बेसिकली ग्लाइड ही करता है। ठीक है, तो दैट इज द ज्वाइंट प्ले। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दो वर्ड है, यहाँ पे काइनेमेटिक्स लिखा हुआ है। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, पहले काइनेटिक्स बता दूं, बायोमेकेनिक्स के दोनों प्रिंसिपल है। बायोमेकेनिक्स सिंपली द व्हेन यू स्टडी सम लॉज, द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स इन द ह्यूमन बॉडी जॉइंट्स इज कॉल्ड द बायोमेकेनिक्स। बायो मींस ह्यूमन लाइफ, मैकेनिक्स द प्रिंसिपल which is can branch of the physics you can call it. So basically the mechanical application of a mechanical force on a body joint is studied under the बायोमेकेनिक्स। लेकिन बायोमेकेनिक्स की फर्दर डिविजन्स हैं, ब्रांचेस हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। जब आप किसी का सिर्फ फोर्स की स्टडी करते हो, यू आर स्टडिंग द काइनेटिक्स। व्हेन यू स्टडी एवरीथिंग अबाउट द फोर्स एक्सेप्ट इट्स व्हाट वी कैन से द इंटेंसिटी, लेट्स सपोज, या शुड आई एक्सप्लेन in a more easy way, when you study as a case scenario and your only focus is about the force in Newton, how much force is basically applied, you are talking about the kinetics. But when you talk about everything about the force, the direction, magnitude, everything except the how much force was applied, let's suppose you are talking about the direction in which the object goes, the time which takes place, but except the force you are studying, it will be studied under the kinematics. Let's suppose एक बंदा, एक फुटबॉलर है, उसने फुटबॉल को हिट किया 15 न्यूटन फोर्स के साथ। अब पूरे केस में आपको सिर्फ 15 न्यूटन फोर्स स्टडी करना है। लेट्स सपोज, या आप स्टडी कर रहे हो, बाकी चीजें नहीं देख रहे, वो बॉल किधर गया, कितने टाइम में पहुंचा, हिट किसने किया, यू आर ओनली फोकस इज द हाउ मच न्यूटन फोर्स वाज अप्लाइड। सो दिस सिनेरियो विल बी स्टडीड अंडर द काइनेटिक्स। व्हेन यू टॉक अबाउट कि एक फुटबॉलर ने हिट किया बॉल, इतने फोर्स को भी छोड़ दो, लेकिन बॉल जो है इस स्पीड के साथ जाता है, इतना टाइम लेता है, इस डायरेक्शन में जाता है, यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट द फोर्स, हाउ मच फोर्स वाज अप्लाइड। दिस सिनेरियो विल बी स्टडीड अंडर द kinematics. So kinematics is basically the study of the geometry motion, which is kind of the independent of the kinetic influences. मतलब वो मोशन, जो वो फोर्स जो मोशन कराता है उससे हमारा गर्ज नहीं है, लेकिन उसके अलावा हर चीज उसमें आ जाए तो वो काइनेमेटिक्स में आएगा। लेकिन अगर आपका फोकस फोर्स पे हो तो वो काइनेटिक्स में आएगा। ठीक है, स्पाइनल मूवमेंट्स नाम ही बताता है कि स्पाइनल मूवमेंट, जो स्पाइनल वर्टिब्रास की जो मूवमेंट्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मूवमेंट असेस कर सको, इवोल्यूट कर सको। जस्ट लाइक ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट मोशंस वगैरह, हो गया कि एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर किस तरह मूव कर रही है, उन दोनों के बीच में तीन ज्वाइंट्स है, कौन कौन से ज्वाइंट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ द मूवमेंट्स टेक्स प्लेस देयर, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास जनरल मूवमेंट। जनरल मूवमेंट्स पूरे वर्टिब्रल रीजन की, लेट सपोज सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्राज हैं, एक वर्टिब्रा अपर सर्वाइकल स्पाइन है, देन वी हैव अ लोअर सर्वाइकल स्पाइन। अपर और लोअर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अपर में जो दो वर्टिब्राज हैं, दो वर्टिब्राज हैं, उनके दरमियान जो सेगमेंटल मोशन है उसको तो आपने स्पाइनल मूवमेंट्स का नाम दिया। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द रीजनल मूवमेंट, लेट्स सपोज सर्वाइकल में मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट। सर्वाइकल में आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, ये रीजनल मूवमेंट है पूरे रीजन वाइज। यू आर टॉकिंग अबाउट द होल सर्वाइकल रीजन, यू आर टॉकिंग अबाउट द होल thoracic region, so those are the general movement. And then we come to the specific movement, जिस तरह हमने segmental movement का नाम लिया। when we talk about the motion segment को हम आगे डिस्कस करेंगे, मोबाइल सेगमेंट भी इसको कहा जाता है। segmental movement when you isolate it solo के तौर पे, when you are talking about a specific movement which takes place between two vertebrae, just like the component motion. And then we have a motion mobile segment या motion segment. मोबाइल सेगमेंट या मोशन सेगमेंट इज बेसिकली इनडायरेक्टली व्हेन यू टॉक, मैंने आपको बताया था इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो आपकी दो वर्टिब्रास के दरमियान डिस्क है, तभी इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। अब वर्टिब्रा का डिस्क के साथ ज्वाइंट क्या है, और उसके सराउंडिंग में जितने भी तीन ज्वाइंट्स हैं उनको कलेक्टिवली मोशन सेगमेंट कहा जाता है। मतलब दो वर्टिब्रा, एक डिस्क,
उसके बराबर में 3 जॉइंट और सारी की सारी स्ट्रक्चर मिला के इस पैकेज को, इस पार्सल को मोशन सेगमेंट कहा जाता है। तो इट्स मोबाइल सेगमेंट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑफ द 3 जॉइंट। एक जॉइंट कौन सा होगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, और 2 फैसेट जॉइंट का। 2 वर्टिब्रा, उसके दरमियान डिस्क, और वो जॉइंट बनाएगी, जाहिर सी बात है। और बराबर में जो 2 फैसेट जॉइंट है और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर, मसल, नर्व सारे। तो इट्स कलेक्टिवली कॉल्ड द मोशन सेगमेंट। So the motion segment is basically 3 joints: intervertebral disc joint and the 2 facet joint and the surrounding structure like muscle ligament surrounding to them. Collectively they call the mobile segment या motion segment, and they are specifically responsible for each spinal segment movement. अगर ये intervertebral disc ना होती, आपकी spine straight होती, you won't be curves and motion segment. They are only responsible for the flexibility of your spine. अगर ये ना होते तो आपकी मोशन स्पाइन जो है वो उसमें लचक ना होती, फ्लेक्सिबिलिटी ना होती, अलबत्ता मूवमेंट भी ना होती। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोबाइल सेगमेंट ऑफ स्पाइन इज वेरी क्रुशियल, important for healthcare professionals, specifically for the physiotherapist, in order to understand the spinal motion segment, in order to examine and evaluate the problem line. जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक पीपीवीआई फिजियोथेरेपी में टास्क होती है जिसमें एक एक सेगमेंट को मोबाइल किया जाता है चेक करने के लिए कि प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ से है। So this was the motion segment, yeah, mobile segment. You have a picture in front of that the mobile segment. Now you just look whatever the vertebra level is, एक वर्टिब्रा ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, बराबर में 2 फैसेट जॉइंट है, मसल्स भी शो, मसल तो शो नहीं कर रहा, नर्व शो कर रहा है, और भी स्ट्रक्चर, लिगामेंट वगैरह सब मिला के अगर आप इसको एक्सप्लेन करो तो दैट कलेक्टिवली इज कॉल्ड द मोशन सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट। अब इस मोशन सेगमेंट में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट है वो क्या चीज है, हम सबको पता है। जो आईवीडी इंटरवर्टिब्रल आपकी जो डिस्क है, मोरा, जिसको हम मोरा तो वर्टिब्रा को कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क जॉइंट है वो बेसिकली आर्टिकुलेशन है 2 वर्टिब्रास के दरमियान। जस्ट लाइक व्हेन यू ईट सम बर्गर विथ अ kebab in between them या chicken in between them, that chicken or the kebab is basically kind of the intervertebral disc, and the bread, the superiorly and the inferiorly are the vertebrae. ठीक है, तो 2 वर्टिब्रा के दरमियान जो डिस्क है, that work as a cushion, that is basically the intervertebral disc। और intervertebral disc के 2 पार्ट होते हैं, एक वो अंदर थोड़ी सी सेमी लिक्विड होती है, फ्लूइड नुमा होती है, उसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहा जाता है, वो थोड़ी सी लिक्विड टाइप होती है। और बाहर वाला थोड़ा सा टाइट होता है, टफ होता है, रफ होता है, हार्ड होता है, दैट इज द एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये 2 पार्ट होते हैं, एंड इट वर्क एज अ कुशन, जिसके मेन फंक्शन हम पढ़ेंगे। मेन फंक्शन इंटरवर्टिब्रल डिस्क के क्या है, इट सपोर्ट योर वर्टिब्रा एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। जब आप जंप लगाते हो, वॉक करते हो, बैठते हो, लेट सपोज, तो आपकी एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के ऊपर डायरेक्टली वजन नहीं देती, बीच में इट वर्क एज अ कुशन। तो इट वर्क एज बेसिकली इट सपोर्ट, नॉट ओनली सपोर्ट, इट प्रोवाइड द मोबिलिटी एंड इट आल्सो वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर। इसी तरह आगे इट आल्सो प्रोवाइड द सेकंड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट। मैंने बताया था अगर आपकी स्पाइन एक दूसरे के ऊपर होते तो कोई मूवमेंट ना होती, तो ये लचक और मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इट आल्सो लो ट्रांसमिशन या ट्रांसलेशन। जब आप फोर्स देते हो, लेट सपोज आप सर्वाइकल के ऊपर कोई हेलमेट पहना हुआ है या कोई वजन दिया हुआ है, तो सारे सर्वाइकल रीजन में जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो इन डिस्क है। ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिकली किसी एक के ऊपर काम करो, तो ये सब इस पूरी स्पाइन के ऊपर इवनली, इक्वली, बराबर के तौर पे फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। दैट इज हाउ द फंक्शन इज द लोड ट्रांसमिशन या लोड ट्रांजिशन। देन न्यूट्रिएंट सप्लाई, इंटरवर्टिब्रल डिस्क को न्यूट्रिएंट सप्लाई, खाना पीना तो चाहिए वरना जिंदा कैसे रहेंगे, लिविंग स्ट्रक्चर है। तो इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है, दे आर वेरी, दे रिसीव द न्यूट्रिएंट फ्रॉम व्हाट दे रिसीव फ्रॉम द इम्बाइबिशन। इम्बिबाइशन हम एक केमिस्ट्री या फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जहाँ पे फ्लूइड में से जो है वो एब्जॉर्ब, मतलब इम्बाइबिट मतलब इनडायरेक्टली फूल जाना। जिस तरह बीज होता है, जो सीड्स होते हैं, जब वो जमीन में डाल दिए जाते हैं और उनको पानी दिया जाता है तो वो उसको जज़ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। दैट इज द इम्बाइबिशन इनडायरेक्टली। ठीक है, या हम बाकी भी चीजें हैं उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो इम्बाइबिशन प्रोसेस के थ्रू अपना खाना पीना लेती हैं। वो कहाँ से फ्लूइड आ रहा होता है, जब वो रेस्ट में हो रही होती है तो वो अपने फ्लूइड्स जो बराबर में साइनोवियल फ्लूइड है, बराबर में जितने भी इंटरस्टिशनल जो फ्लूइड है, उनमें से ये खाना पीना लेती है और फिर उसको रिलीज करती हैं जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। तो वेन एवर यू अप्लाई द प्रेशर, दे रिलीज द एनर्जी, एंड व्हेन दे आर एट रेस्ट दे एब्जॉर्ब। So this procedure is basically called the imbibition. तो ओवरऑल जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, मैं आपको वापस
मेन रोल प्ले करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं सपोर्ट में, मूवमेंट को फैसिलिटेट करने में, लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, स्पाइनल हेल्थ को इंश्योर करने के में, उसके फंक्शन प्रोवाइड करने में। तो हेल्दी डिस्क, वेन एवर आई से कि आप कितने ओल्ड हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इफ यू वांट टू बी एज हेल्दियर एज पॉसिबल, जस्ट कीप योर स्पाइन फ्लेक्सिबल, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। तो एक पिक्चर है हमारे पास, नाउ जस्ट लुक एट द इंटरवर्टिब्रल डिस्क लुकिंग फ्रॉम द लेटरल व्यू, वन वर्टिब्रा अबव, वन वर्टिब्रा बिलो, कलेक्टिवली इज कॉल्ड मोशन सेगमेंट। ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है दैट इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और जो उसके बीच पीछे स्पेस है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जहाँ से आपकी जो न्यूरल स्ट्रक्चर्स हैं वो पास होती हैं। सुपीरियर व्यू अगर आप देखें तो एक आउटर सरफेस है जिसको इन्होंने एनुलस फाइब्रोसिस का कहा जाता है, वो हार्ड होता है और वो काइंड ऑफ एवेस्कुलर भी होता है, और बीच में जो लिक्विड स्ट्रक्चर है that is the nucleus pulposus जिसमें फ्लूइड होता है, ठीक है। Then we have a facet joint. We all are aware of the zygophysial joint, which is called the facet joint. एक joint, एक vertebra के पास कम से कम दो joint होते हैं, और ये joint इसीलिए कहा जाता है because it is basically articulation between the superior and inferior articular surface. तो ये एक छोटा सा synovial joint है जो आपकी vertebra और spine में मौजूद होता है, और ये टिनी joints एक vertebra के ऊपर कम से कम दो होते हैं। तो जो superior और inferior articular process होते हैं adjacent vertebra के, वो मिलके एक स्पेसिफिक ज्वाइंट बनाते हैं। तो दोनों तरफ एक, अगर लेट सपोज T3 और 4 है, तो T3 का सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस दो होंगे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। उसी तरह T4 का सुपीरियर आर्टिकुलर इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसीज दो होंगे, राइट और लेफ्ट। तो जब T3 का सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसीज T4 के इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसीज से मिलेगा, तो जिस तरफ का होगा राइट साइड का एक फेसेट ज्वाइंट बनेगा, लेफ्ट साइड का दूसरा। तो दोनों साइड पे दो फेसेट ज्वाइंट होंगे एक ही सेम लेवल पे, ठीक है। और फैसेट जॉइंट का मेन काम होता है कि ये मूवमेंट्स गाइड करते हैं कि किस मूवमेंट में, किस रीजन में मूवमेंट कौन सी ज्यादा होगी। जस्ट लाइक सर्वाइकल पे फैसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, थोरेसिक पे डिफरेंट है, लंबर पे डिफरेंट है, इसीलिए मूवमेंट भी सबकी डिफरेंट है। सर्वाइकल पे सबसे ज्यादा रोटेशन होती है, लंबर पे सबसे ज्यादा कम होती है। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज बेसिक रोल ऑफ द facet joint. Or no doubt, whenever the facet joint gets locked, the procedure is used to unlock the facet joint is called the manipulation. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Facet joint play a several important roles. Let's suppose facilitate the movement, as I told you. ये स्पाइन के डिफरेंट रीजन में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द फैसेट जॉइंट। फैसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन कैसी है, उसके बुनियाद पे ही वहां पर वो कौन सी मोशन होती है। इट आल्सो प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, एज आई टोल्ड यू। जब आप मूवमेंट्स फैसिलिटेट, कोई मूवमेंट्स हो रही होती है, तो फैसेट जॉइंट उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। फैसेट जॉइंट अपने आप को शेप रीशेप नहीं करते, लेकिन उनकी एंगुलेशन जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सी मूवमेंट कहाँ पे होनी चाहिए अप टू अ लिमिट। तो एंड रेंज इज आल्सो प्रोवाइडेड, तो अल्टीमेटली इट्स प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी। और इन्हीं फैसेट जॉइंट के एंड रेंज पे जाकर हम थ्रस्ट देते हैं तो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लोड बेयरिंग, दे आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द फोर्स whenever the spine is in erect position, especially the during weight bearing activities, they are also loaded, so it also works as a load bearer. And then we have a sensory function as well. Facet joint are also innervated by the sensory nerves जो उनको सप्लाई करती हैं, और इनडायरेक्टली जो ट्रांसमिट होती हैं उसी उन्हीं के इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू, एंड दे आल्सो बेसिकली ट्रांसमिट द सिग्नल्स related to the joints, just like the pain, proprioception, awareness of the body positions, and the movement to the brain as well. अगर फैसेट जॉइंट की इंजरी हो जाए, डिसफंक्शन हो जाए, तो वो भी पेन कॉज करा सकते हैं या मूवमेंट लिमिट करा सकते हैं उस रीजन की जो अफेक्टेड। So the overall facet joint, they play a key role in order to maintain the stability, mobility, and also the sensory function of the spine. This is how the picture you can see the one vertebra and the other vertebra, in between them blue color structure, that is the disc, and collectively it is called the motion segment when you include the nerve as well. And can you see the intervertebral foramen as well, जहाँ से yellow color की structure pass हो रही है, and then उसके भी पीछे अगर हम देखें, दैट इज एक और डिस्क शो हो रही है, कैप्सूल शो हो रहा है, वो दो फैसेट जॉइंट के दरमियान का है। तो पीछे उसके बिल्कुल फैसेट जॉइंट है जिसको जूम आउट करके दिखाया गया कैप्सूल, एंड देन यू हैव अ साइनोवियल फ्लूइड। क्योंकि जो आपका फैसेट जॉइंट है वो दो आर्टिकुलर सरफेस के दरमियान बीच में बनता है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई डिस्क जरूर होगी, तो उसको उन्होंने कैप्सूल का नाम, कैप्सूल उन्होंने सराउंड किया हुआ है। इन बिटवीन देम यू हैव फ्लूइड, और जब ये फ्लूइड खत्म हो जाता है या डैमेज हो जाता है, जिसकी पिक्चर मैंने नीचे शो की हुई है,
फिर वो प्रॉब्लम्स कॉज करता है, फिर वो पेन वगैरह कॉज करता है। दैट कैन बी ड्यू टू द स्पॉन्डिलोसिस या डिजेनरेटिव चेंजेस एटसेट्रा, या डायरेक्ट ट्रॉमा। देन वी हैव इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, नाम ही बताता है इंटरवर्टिब्रल, दो वर्टिब्रा के दरमियान में एक ऐसा सोराख जहाँ से आपकी न्यूरल स्ट्रक्चर पास होती है, इसको न्यूरल फोरामेन भी कहा जाता है। तो द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन आल्सो कॉल्ड द न्यूरल फोरामेन या स्पाइनल, क्योंकि स्पाइन के दरमियान है। तो इट्स बेसिकली द पैसेज वे, ये एक रास्ता है जो कि वर्टिब्रा के दरमियान में मौजूद होता है, और यहाँ सर नर्व्स पास होती है, तो इट बेसिकली सर्व एज अ ओपनिंग थ्रू विच द स्पाइनल नर्व पास। और जब भी ये ओपनिंग अगर रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है तो नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ रही होती है। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहाँ पे नर्व कंप्रेशन हमारे पास आ रहे होते हैं। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन इज बेसिकली द अलाइनमेंट ऑफ द योर वर्टिब्रल बॉडीज एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एंड दीज foramen are very important for the passage of the neural structure। इसका बेस्ट एग्जांपल है वर्टिब्रल फोरामेन हमारे पास है, जिसको स्पाइनल कैनाल भी कहा जाता है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड ये कैनाल कम नैरो होता जाए, जो कंडीशन है स्पाइनल स्टीनोसिस, तो जो स्ट्रक्चर वहां से पास हो रही है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगी। फिर डिपेंड करता है वो सिम्टम्स किस लेवल की हैं वगैरह। और दूसरा, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, नॉट स्पाइनल कैनाल जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरवर्टिब्रल, जो दो वर्टिब्रास के दरमियान हर एवरी वर्टिब्रा हैज अ डिफरेंट नर्व सप्लाई। हर लेवल की वर्टिब्रा जो न्यूरल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। तो हियर वी आर टॉकिंग, तो यू हैव इन फ्रंट ऑफ पिक्चर यू कैन सी ऑन योर राइट इज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ऑन योर लेफ्ट इज द वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है। देन वी हैव अ वर्ड द ब्लॉक वर्टिब्रा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो मोबिलिटी है वर्टिब्रास के दरमियान वो कंप्लीटली लॉस हो जाती है, इनडायरेक्टली एंड इरिवर्सिबली। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द वर्टिब्रल ब्लॉक वर्टिब्रा। तो ब्लॉक वर्टिब्रा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो मोबिलिटी है मोशन सेगमेंट के दरमियान, तो वर्टिब्रा के दरमियान वो किसी भी वजूहत से खत्म हो जाती है। जस्ट लाइक एनकालोजिंग, एनकालोजिंग वर्ड का मतलब है ज्वाइंट स्टिफनेस। स्पॉन्डोलिसिस एनकालोजिंग, एनकालोजिंग स्पॉन्डोलिसिस जब यही ज्वाइंट स्टिफनेस आपकी स्पाइन में हो। तो एनकालोजिंग वर्ड का मतलब है ज्वाइंट स्टिफनेस, जब ज्वाइंट स्टिफ हो जाता है दैट इज यू कैन कॉल इट द ब्लॉक वर्टिब्रा। तो इट्स बेसिकली द पेन फ्री एंड स्टेन जस्ट लाइक एनकालोजिंग स्पॉन्डोलिसिस अंटिल एंड अनलेस इसके ऊपर कोई कंप्रेशन ना आए। तो इट्स आल्सो नोन एज द फ्यूज्ड वर्टिब्रा, जब आपका वर्टिब्रा फ्यूज हो जाए इनडायरेक्ट। ठीक है। आल्सो कैन रिफ्लेक्ट टू द कंजेनाइटल बट आल्सो कैन बी अक्वायर्ड। here you can see in the picture at the level बिल्कुल दरमियान में अगर देखोगे that would be the blocked vertebra। और उसका एमआरआई भी कलर पिक्चर्ड भी है और ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर भी एज यू कैन सी। ठीक है। इफ यू काउंट डाउन फ्रॉम द अबव, लेट्स सपोज दिस इज द T1 2, तो 3 और 4 के दरमियान अगर आप देखें प्रोबेबली इट्स अ लॉडोटिक इन कर्व, तो ये लंबर भी हो सकती है। नाउ कम फ्रॉम, लेट्स सपोज इफ यू टारगेट द L1 2 3 4 5, तो यू कैन सी किस लेवल पे है। ठीक है। देन वी हैव अ इमोबाइल सेगमेंट, फंक्शनल ब्लॉक वर्टिब्रा, एक ऐसा इमोबाइल सेगमेंट जो मूव नहीं कर पा रहा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी जो मोबिलिटी है वो किसी सेगमेंट की कंप्लीटली लॉस हो जाए, बट नॉट टेम्परली, टेम्परली ना हो, परमानेंटली बेसिकली। एंड दिस कंडीशन इज आल्सो नॉट पेनलेस। ठीक है। तो फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ द पॉसिबिलिटीज जिसमें ये ब्लॉक वर्टिब्रा या जो आपका ये कंप्लीटली ब्लॉक वर्टिब्रा है फंक्शनल ब्लॉक वर्टिब्रा हो सकता है। फ्रैक्चर में हो सकता है, अर्निएशन में हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या कोई ऑस्टियोलाइटिक प्रोसेस में भी ये चीजें हो सकती है। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद द कंटिन्यू करते हैं इसको। द स्पाइनल रेंज ऑफ द मूवमेंट, द मोशन, जो मोशन सेगमेंट है दैट इज अ पॉसिबल एट द स्पाइनल सेगमेंट, जिसको हमने नाम दिया मोशन सेगमेंट का, स्पेसिफिकली बाय द फैसेट एंड आईवीडी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ग्रेटर द डायमीटर, जितना डिस्क का डायमीटर बड़ा होगा मोबिलिटी उससे ज्यादा होगी। ठीक है। तो स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मैंने पहले ही कहा था, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन एज। स्पाइन की जो लचक है वो इंसान की एज के साथ साथ अफेक्टेड होती है, मतलब कम होती जाती है, और वो बड़ा उससे वाबस्ता है अगर वो एक्सरसाइज की तरफ नहीं भी जा रहा। समटाइम वी हैव अ गुड फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। तो आपकी जो हेल्थ टिश्यूज की जो हेल्थ है, स्पेशली जो स्पाइन को सराउंड करें, वो बड़ा मैटर करता है। उसके ऊपर भी, फिजिकल कंडीशनिंग के ऊपर भी, हेरिडिटी फैक्टर भी हो सकता है, और वगैरह वगैरह। ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ द स्पाइनल रेंज ऑफ द मूवमेंट। आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। अब स्पाइन जो आपकी इस काइंड ऑफ द रोड लाइक, और इसमें कर्व्ड होते हैं, सर्वाइकल पे लॉर्डोटिक है, थोरेसिक में काइफोसिस है, लंबर में फिर लॉर्डोटिक है, इस तरह करके। तो स्पाइनल रेंज ऑफ जो मोशन है वो डिपेंड करता है। अब हर स्पाइन की एरिया वाइज, रीजन वाइज रेंज भी डिफरेंट है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था। सर्वाइकल में रोटेशन सबसे ज्यादा होती है, फ्लेक्शन भी होती है, रोटेशन सबसे ज्यादा होती है। लंबर में
साइड फ्लेक्शन होती है लेकिन रोटेशन सबसे कम होती है, फॉरवर्ड फ्लेक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो दैट इंडिकेट द स्पाइनल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है। अब हम आ जाते हैं 3D ज्वाइंट पोजिशनिंग या जनरल ज्वाइंट पोजिशनिंग के ऊपर। जस्ट लाइक जो हमने डिस्कस किया था, क्लोज पेक, ओपन पेक, रेस्टिंग, नॉन रेस्टिंग, in order to evaluate and examine for the different musculoskeletal disorder, yeah, for the basically as a practitioner for the purpose of the treatment. So there are the 5 joint position, लेकिन हम सिर्फ उसको 2 या 3 पढ़ते हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द कैल्टन बॉन्ड, वी हैव अ रेस्टिंग पोजिशन। रेस्टिंग पोजिशन को लूज पेक पोजिशन भी कहा जाता था। ये पोजिशन बेसिकली मैकोनल ने दी थी। ये एक ऐसी पोजिशन है जिसमें हम यूजुअली 3 डायमेंशनल पोजिशन है, जहां पर जितने भी पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपके लिगामेंट वगैरह, वो रिलैक्स्ड होते हैं। नंबर 1, क्योंकि नाम ही बताता है लूज पेक पोजिशन है, जिसकी वजह से ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्ले, जो मोशन मूवमेंट्स है, एसेसरी मूवमेंट्स हैं, वो पॉसिबल होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल रिलैक्स्ड है, लॉक्ड नहीं है। तो दिस इज आल्सो द सिम्टम रिलीविंग पोस्चर फॉर द पेशेंट एज वेल, बिकॉज ऑफ द मोस्ट रिलैक्स एंड द लीस्ट मसल टेंशन। और ये पोजीशन पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग भी होती है, इसीलिए पोजीशन ऑफ कंफर्ट भी कहा जाता है। क्यों? इसमें मसल सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड है, ज्यादा टेंस नहीं है, और ये पेन रिलीविंग सिम्टम, पेन रिलीविंग पोस्चर भी है। तो ये इसको कंसिडर किया जाता है एज अ पोजीशन ऑफ द कंफर्ट। रेस्टिंग पोजीशन का मकसद क्या है? कि ऐसी न्यूट्रल पोजीशन या जॉइंट्स की अलाइनमेंट जहां पर आप एक्टिवली जो मूवमेंट है, इंगेज है, बियरिंग वेट है, वो ना हो, इनडायरेक्टली नॉट इंगेज इन द एक्टिव मूवमेंट, जो पोस्चर किसी एक्टिव मूवमेंट में इंगेज ना हो। जस्ट लाइक जब आप सीधे सीधे लेटे हुए हो, तो आई थिंक सीधा लेटना इज नॉट काइंड ऑफ द एक्टिव मूवमेंट जिसमें आपकी इंगेजमेंट हो किसी मसल्स की, या मसल्स आपके ज्यादा टेंशन हो। तो दैट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ द टेंशन इन योर मसल इन अ सुपाइन पोजिशन, मोस्ट इजी पोजिशन एवर। तो इन दिस पोजीशन क्या होगा? मसल सराउंडिंग द जॉइंट जितने भी होंगे वो रिलैक्स होंगे। यहाँ पर मिनिमल टेंशन, मैक्सिमम नहीं होगा लेकिन मिनिमल टेंशन होगा आपके लिगामेंट और अदर टिश्यूज के ऊपर। तो रेस्टिंग पोजीशन बेसिकली मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक जॉइंट। ये जॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब आप सिटिंग पोजीशन में हो, मे बी पेल्विक जॉइंट जो है वो रेस्टिंग में हो, लेकिन शोल्डर जॉइंट तो रेस्टिंग नहीं है, तो ये पोजीशन बेस्ड होता है। ठीक है। तो रेस्टिंग पोजीशन इट बेसिकली सर्व as a baseline reference to evaluate for the different range of motion, different aligning, assessing the alignments and determining the functional limitation. Resting position का पढ़ने का फायदा क्या है? नंबर 1, evaluating the joint play through the range of motion. लेट सपोज आप किसी की एंड फील निकालना चाहते हो, तो एंड फील आपको निकालने के लिए जॉइंट को रेस्टिंग पोजीशन में लाना लाजम है। आपके डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस जो है वो, अगर आप लो रिस्क के साथ क्लिनिकल ट्रायल ट्रीटमेंट करना चाहते हो और डायग्नोसिस अपना कंफर्म करना चाहते हो, रेस्टिंग पोजीशन इज बेस्ट। आप कभी भी थ्रस्ट नहीं देते क्लोज पेक पोजीशन में। मोबिलाइज और मैनिपुलेशन के लिए आप हमेशा रेस्टिंग पोजीशन प्रेफर करते हो। ग्रेड 1-2 की जो ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन है वो रेस्टिंग में दिए जाते हैं, ताकि आप सिम्टम्स को ट्रीट कर सको। ठीक है। तो ये उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम गो थ्रू कर रहे हैं। अब सवाल ये है, इस रेस्टिंग पोजीशन को निकाला कैसे जाए? मतलब हाउ कैन आई से दैट दिस जॉइंट इन रेस्टिंग पोजीशन, दिस जॉइंट इज द क्लोज पेक पोजीशन। तो इन ऑर्डर टू पोजीशन द जॉइंट इन अ रेस्टिंग पोजीशन, व्हाट यू हैव टू डू, अप्रोक्सीमेट जो रेस्टिंग पोजीशन है उसमें ले आओ। फॉर एग्जांपल, नेक की जो रेस्टिंग पोजीशन है वो स्लाइट लॉर्डोसिस है। जब आप सर्वाइकल नेक, अपनी गर्दन को, जो ऑलरेडी लॉर्डोटिक नेचर है, जब स्लाइट लॉर्डोसिस में ले आएंगे, ठीक है, तो वो उसके लिए रेस्टिंग पोजीशन है। मतलब जिसमें उसका सर्वाइकल लॉर्डोटिक कर्व जो है वो मेंटेन रहे, स्लाइट लॉर्डोसिस में ले आओगे ताकि उसका कर्व बरकरार रहे। ठीक है। दैट इज द रेस्टिंग पोजीशन फॉर सर्वाइकल स्पाइन, नॉट मैक्सिमल एक्सटेंशन। जो फुल मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो क्लोज पेक पोजीशन है, याद रखिएगा। मोर देन 5 to 10 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज द क्लोज पेक पोजीशन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्टिंग पोजीशन। तो इस पोजीशन में क्या होगा? अप्रोक्सीमेट रेस्टिंग पोजीशन में आप जेंटल ग्रेड 1-2 ट्रैक्शन, जेंटल ग्रेड 1-2 मोबिलाइजेशन भी दे सकते हो एट अ फर्स्ट स्टॉप इनडायरेक्टली, जो कि आपको थोड़ी बहुत पेशेंट को ईज देगा। फिर आप क्या करते हो? रीपोजिशन करते हो इनटू स्लाइटली मोर और लेस फ्लेक्शन। फिर आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, मतलब स्लाइटली उसको मजीद लोटर में ले आओ, या लेस फ्लेक्शन में ले जाओ, या एक्सटेंशन में ले जाओ, और फिर आप अप्लाई करो ट्रैक्शन। मतलब पहले आपने एक पोजीशन बनाई, स्लाइटली लोडोसिस में ले आए, आपने ग्रेड 2 ट्रैक्शन दिया। उसके बाद फिर आप या क्या करो, मजीद लोडोसिस में ले जाओ, या लेस फ्लेक्शन करवा के या एक्सटेंशन करवा के फिर आप ट्रैक्शन अप्लाई करो अगेन, देन अंटिल यू लोकेट द पोजीशन। उसके बाद उसको ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा इजी पोजीशन आपको मिलेगी,
डिग्री ऑफ मूवमेंट मिलेगी, दैट इज द रेस्टिंग पोजिशन। फिर आप ये ट्रैक्शन रिपीट करते हो जस्ट लाइक रीपोजिशन कर सको, या आप मैक्सिमम बेनिफिट, थेरेपेटिक बेनिफिट्स गेन कर सको, और मिनिमम इफेक्ट जो है वो हो सके। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द रेस्टिंग पोजिशन, ठीक है। देन वी हैव एक्चुअल रेस्टिंग पोजिशन। Resting position was the position of comfort. Actual resting position is the position of the least discomfort. मतलब चलें, अगर कोई पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है पेशेंट के लिए, लेट्स सपोज उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, लीस्ट डिस्कम्फर्ट तो फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो वेन एवर द जॉइंट पोजिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट ईज, मतलब इसमें एक है कि पोजिशन ऑफ कंफर्ट में, इस पोजिशन में बड़ा कंफर्टेबल हूँ, बिल्कुल कम पेन है मुझे इसमें, ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल पेन है ही नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, दैट इज द रेस्टिंग पोजिशन। वेन एवर पेशेंट सेज कि यार हर पोजिशन में पेन है, देन वी डिसाइड कि सबसे कम डिस्कम्फर्ट किस पोजिशन में, दैट इज द एक्चुअल रेस्टिंग पोजिशन। तो द जॉइंट पोजिशन इज बेसिकली ऑफ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ द ट्रैक्शन जॉइंट, जब जहां पे मैक्सिमम जॉइंट को ट्रैक्ट आप कर सको, दैट सर्व एज अ लीस्ट डिस्कम्फर्ट, जिसमें लीस्ट मसल की रीएक्टिविटी हो, लीस्ट मसल्स के ऊपर टेंशन हो, स्पेशली एरिया ऑफ द डिसफंक्शन के ऊपर, दैट इज द एक्टिव। और ये कैसे हासिल की जाती है? दिस पोजिशन इज बेसिकली अल्टरनेटिवली यूज्ड when any joint pathology is preventing the joint to be placed in resting position। एक ऐसा जॉइंट जिसको आप रेस्टिंग पोजीशन में, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, प्लेस करते हो और पेशेंट को पेन होता है, या पेशेंट इज अनएबल बेसिकली कि आप उसकी रेस्टिंग पोजीशन में नहीं लेके जा सकते, तो काइंडली एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन को प्रेफर करो। तो ये आसान लफ्जों में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, एक पेशेंट कहे कि मेरे लिए लेटना सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है, तो लेटना इज द, मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेटना इज द सुपाइन इज लाइंग इज बेसिकली द रेस्टिंग पोजीशन फॉर दैट पेशेंट। बट वेन एवर पेशेंट से कि मैं जब लेटता हूँ तो मुझे पेन होता है, देन वी आस्क कि किस पोजीशन में आपको कम पेन होता है, दैट जो कम पेन जिसमें हो रहा, लीस्ट डिस्कम्फर्ट पोजीशन इज द एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। दिस इज हाउ यू कैन summarize. So this position is basically called the actual resting position, जिसमें पेशेंट के ज्वाइंट की जो पैथोलॉजी है वो उसको प्रिवेंट कर रही है कि उसको आप रेस्टिंग पोजीशन में नहीं लेके जा सकते। तो बाय कीपिंग इन माइंड दैट विल डिस्प्ले somehow the less ease than the resting position. This is called the actual resting. So in case of the antalgic posture, especially in the supine, patient is presenting the posture may not be close to the actual resting position. ठीक है? So there's a tendency for a patient to strive to orient themselves for upright function, even when they may be the more symptomatic there. So the actual resting position जो है, they may vary depending upon the several factors, especially the joint anatomy, joint health, surrounding tissue, and etc. Then we have a non-resting position. कोई ऐसी पोजीशन जिसमें पेशेंट को इनडायरेक्टली वो मैक्सिमम डिस्कम्फर्ट है, या जो रिलीफ है वो बिल्कुल नहीं है। कैसे? It refers to any posture or alignment of the body point that deviates from the typical resting position. Resting, उसका अगर आप उलट कर लो, that is called the non-resting position. Just give me a sec. Okay, just give me a sec. Okay, I was talking about, okay, let's start with the non-resting position. Non-resting position that refers to the specifically एक ऐसा posture या alignments of the body joints which are typically deviated or away या reverse from the typical resting position. These position may occur during the movement. ये किसी भी movement के करते वक्त भी ये हो सकती है. Just like especially the weight bearing activities or whenever the external forces are applied, so these position can occur. So the non-resting position that can include the various dynamic posture such as sitting, walking, or other physical activities in which the maximum force around the surrounding the structure जो surrounding कर रही है उसके ऊपर maximum tension होगा, minimal नहीं होगा, क्योंकि ये non-resting position है. So they may also encompass the static posture which is assumed for the specific task. Just like आप कोई चीज लिफ्ट करते हो, रीचिंग करते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, ये स्पेसिफिक टास्क है जिसके मैक्सिमम आपको कोई ना कोई मसल जिसके ऊपर मैक्सिमम टेंशन हो वो काम करते हैं. तो द नॉन रेस्टिंग पोजिशन, they are placed different demand for the musculoskeletal system as compared to the resting position, and they may acquire the increased muscle activation. सबसे ज्यादा मसल इस पे काम करेंगे. Joint stability and then coordination. Specifically, you need joint stability and coordination in order to maintain the proper alignment of the function. Practitioner, they need to vary the specific
एंड स्पेसिफिक एंड स्किलफुल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल थेरेपी टेक्निक। प्रैक्टिशनर को स्पेसिफिक होना पड़ेगा इन पोजीशन को समझने के लिए, स्पेशली जब वो ये सारी पोजीशन, रेस्टिंग, नॉन रेस्टिंग, एक्चुअल रेस्टिंग, कि वो किस पोजीशन में प्लेस कर रहे हैं, और उससे भी मोर इम्पोर्टेंट उनको चाहिए क्या क्या। तो स्पेशली जो नोविस प्रैक्टिशनर होते हैं, जो स्पाइनल ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं इन दिस पोजीशन, उसमें क्या करते हैं कि दे आर मोर लाइकली टू ओवर स्ट्रेच द टिश्यू, तो वो नुकसान भी हो सकता है एंड देन कैन कॉज द इंजरीज इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस position. If you can't find out these all position for a specific joint, you don't know what is the resting, what is the non-resting, what is the actual resting for a joint position, you can damage the joint indirectly. कम टू द जॉइंट लॉकिंग, वर्ड ही बता रहा है कि जिसमें जॉइंट लॉक हो जाए, जस्ट लाइक हमने डिस्कस किया था फैसेट जॉइंट के बारे में। तो ऐसी एक फेनोमेना जिसमें जॉइंट टेम्पररी इमोबाइल्ड हो जाते हैं, लॉक्ड हो जाते हैं, वो किसी भी वजूहत से हो सकते हैं, कैप्सुलर बोन या किसी भी, उसको हम जॉइंट लॉकिंग करते हैं। अगर वो नॉर्मल है, लेट्स सपोज, तो वो उसके लिए हम वी आल्सो कैन यूज मैनिपुलेशन। बट वेन एवर द जॉइंट लॉकिंग ऑफन लीड टू द सडन एंड सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, सडनली वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली कैन कॉज द डिस्कम्फर्ट एंड द पेन। और ये किसी भी वजह से हो सकता है, हम सेल्फ मोबाइल करते हैं, सेल्फ मैनिपुलेट करते हैं, तो वो भी हमारे जॉइंट को लॉक कर सकता है, या अगर कोई और बैरियर है तो वो भी जॉइंट को जो है वो लॉक कर सकता है। ठीक है, एंड देन डेफिनेटली एज अ ट्रीटमेंट वी नीड टू अनलॉक इट। तो ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट लॉकिंग क्या होगा? टिपिकली डिपेंड करता है कि अंडरलाइन कॉज क्या है, कि मसल्स जॉइंट को लॉक कर रहे हैं या बोन्स स्टॉप कर रहा है, तो कॉन्ट्रेक्चर कौन सा है। सो स्पाइनल मोबिलाइजेशन टेक्निक, दे आर वेरी इफेक्टिव एंड द मोस्ट इफेक्टिव एंड safe as well, specifically when the joint is localized, specifically within the joint spinal segments। तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं एंड वी जो रिमेनिंग एडजस्टेंट जो लॉक्ड सेगमेंट्स हैं, वो उनको क्लोज पैक पोजीशन। लेट्स सपोज इफ यू आर डीलिंग विद द T3 एंड T4, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को आपको ट्रीट, आप T3-4 को कर रहे हो, तो सराउंडिंग को आप जो है आपने लॉक रखना होगा। तो इन ऑर्डर टू लॉक into the closed peg position, locking is also important. It means locking means basically to being held back against the movement's force in a particular direction. तो स्पाइनल लॉकिंग के जितने भी मैनूवर्स हैं, वो क्लोज पैक पोजीशन में यूज्ड होते हैं, एंड दे आर टिपिकली यूज्ड इन क्रेनियल और कॉर्डल टू बी ट्रीटेड सेगमेंटली। स्पाइनल जितने भी लॉकिंग मैनूवर्स हैं, आप उसमें क्रेनियल और कॉर्डल मतलब जो टूवर्ड, क्रेनियल मतलब सुपीरियरली, कॉर्डल मतलब इंफीरियरली, तो सेगमेंट्स को ट्रीट अगर हमने करना है, तो सराउंडिंग जो T3-4 को ट्रीट कर रहे हो, तो सराउंडिंग जो T1-2 और T5-4 जो है, दे मस्ट बी स्टेबलाइज्ड। डोंट यूज देम, डोंट अनलॉक देम, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉर्मल। तो इन चीजों को हमने ख्याल रखना होगा। ठीक है, so the manual therapist they also lock a spinal segment by placing into a, अच्छा एक और टॉपिक है हमारे पास, वर्ड है कपलिंग एंड नॉन कपलिंग, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने किसी पार्ट को लॉक करना है, जिस तरह हमने डिस्कस किया, हम पैसिवली भी इसको लॉक कर सकते हैं। मतलब लॉक करना मतलब स्टेबलाइज करना इनडायरेक्टली। तो लॉक करने के लिए आपने ज्वाइंट की दो पोजीशन होती है, क्या? कपलिंग, नॉन कपलिंग। आप किसी ज्वाइंट को जब नॉन कपल्ड मूवमेंट में ले आते हो, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स लॉक। तो मैनुअल थेरेपिस्ट शुड नो that if he want to lock any joint segment, he must need to bring that joint into the non-coupled movement. So a manual therapist can lock a segment by just placing into a non-coupled movement. And what we know non-coupled movement आगे discuss करेंगे। Non-coupled movement basically it can provide the most specific spinal locking, effective spinal locking. नॉन कपल्ड एंड कपल्ड मूवमेंट, कपल्ड मूवमेंट दो तरह की मूवमेंट्स हैं। जब आप दो तरह की मूवमेंट्स को आपस में मिलाते हो, रिजल्टेंट मूवमेंट आपको रिजल्टेंट मूवमेंट सबसे ज्यादा मिले, और जो स्ट्रेस है वो आपको मिनिमम मिले, रिस्ट्रिक्शन मिनिमल मिले, रिजल्टेंट मूवमेंट आपको ज्यादा मिले, और जो एंड फील है वो भी सॉफ्ट मिले, then you say कि those both movements are coupled with each other. Whenever two movements are united, the resultant movement is less. Let's suppose resultant movement whatever is achieved is less, and the in order to get those combining those movements, the restriction is high, and you find the end field is harder. Let's suppose they both movements are non-coupled with each other. So non-coupled movements at a joint can also bring the joints into the spinal locking. This is how you can understand. Okay? And McConnell also referred the locked position, a locked position as a closed peg position. नाउ इफ यू कैन सी, अगर मैं आपको शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल दे दिया, मैं आपको नी जॉइंट का मिसाल दूं, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल भी समझाया जा सकता है,
और लॉक और अनलॉक का भी समझाया जा सकता है। पहली पिक्चर अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें जिसपे नी 90 डिग्री फ्लेक्स है, तो फीमर एट अ 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द टिबिया। तो जब आप फीमर 90 डिग्री फ्लेक्स्ड है, तो यहाँ पर जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो इतने टाइट नहीं होंगे, स्लैक होंगे, क्योंकि फ्लेक्शन है, एक्सटेंडेड नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट पोजिशन फॉर अनलॉकिंग, दिस इज नॉट अ लॉक्ड। whenever you look at the left side picture, whenever knee is extended and quadriceps muscle are tight because the knee is in extension basically, so the surrounding muscle are very tight, this is called the ligaments are very full, taut word, taut, taut मतलब tight है आपस में, especially in the extension they are the lock, you can call it, ठीक है। नाउ वी हैव अ बोन एंड द जॉइंट मूवमेंट। बोन मूवमेंट मतलब ऑस्टियोकाइनेमेटिक, जो बोन की मूवमेंट्स होती हैं, जो आपकी एक्टिव मूवमेंट है, फंक्शनल मूवमेंट है। आर्थ्रोकाइनेमिक मूवमेंट मतलब जॉइंट प्ले मूवमेंट, जो आपकी एसेसरी मूवमेंट्स हैं। दे बोथ आर वेरी नीडेड एंड नेसेसरी फॉर द ओएमटी एवोल्यूशन। हम डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। अब मुझे लगता है ऑस्टियोकाइनेमेटिक और ऑर्थोकाइनेमेटिक को डिस्कस करना चाहिए। ऑस्टियोकाइनेमेटिक मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ब्रांच ऑफ द बायोमेकेनिक्स जो कि डील करती है बोन्स की मूवमेंट्स के साथ अराउंड, डेफिनेटली अगर कोई बोन की मूवमेंट हो रही है वो किसी एक्सिस के अराउंड होगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस विद इन द जॉइंट सर्फेसेस। हम जॉइंट सर्फेसेस के दौरान ग्लाइडिंग स्लाइडिंग हो रही है उसके बारे में बात नहीं करें, हम बोन्स की मूवमेंट्स की बात करें। सो द मूवमेंट्स ऑफ बोन इज स्टडीड ऑस्टियोकाइनेमेटिक, ऑस्टियो मतलब बोन, काइनेमेटिक्स वी ऑल नो ब्रांच ऑफ द बायोमेकेनिक्स। अभी जो पिक्चर है आपके सामने, जितनी भी मूवमेंट्स हैं शोल्डर की, हिप की, पेरिफेरल जॉइंट्स की, सर्वाइकल की, स्पाइन की, दे आर कॉल्ड द ऑस्टियोकाइनेमेटिक। व्हाइल द ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट इज द ब्रांच ऑफ द बायोमेकेनिक्स, बस इसका फोर्स होता है मूवमेंट टेकिंग प्लेस विद इन द जॉइंट सर्फेसेस लाइक ग्लाइडिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग। अब उसकी एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, ये आपके सामने पिक्चर ग्लैड। अभी हमने ऊपर नी की पिक्चर देखी थी, तो जब आप स्क्वाटिंग करते हो 90 डिग्री आप नी फ्लेक्शन करते हो, तो आपका जो फीमर है वो बेसिकली ग्लाइड करता है, एंटीरियर ग्लाइड, एंटीरियरली ग्लाइड करता है। और जब आप नी एक्सटेंशन करते हो, स्क्वाटिंग से सिट टू स्टैंड आते हो, तो वो पोस्टीरियरली ग्लाइड करता है। तो ग्लाइडिंग, रोलिंग, स्पिनिंग, दिस ऑल मूवमेंट आर स्टडीड अंडर द ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ द बोन मूवमेंट्स है जो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। रोटेशन मूवमेंट है जो विच आर अकरिंग एट अ कर्व, एट अ एंगुलर। देन वी हैव अ ट्रांसलेशन या लीनियर मूवमेंट जो एक दोनों प्लेन के पैरेलल होती है, ठीक है, नॉट अराउंड द कर्व, किसी एक्सिस के अराउंड हो। तो रोटेशनल मूवमेंट आपकी प्रोनेशन, सुपिनेशन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। ट्रांसलेशन मूवमेंट जो प्लेन के अराउंड हो। तो बोन की रोटेशन जो है वो जॉइंट मूवमेंट जस्ट लाइक रोलिंग, ग्लाइडिंग, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ट्रांसलेशन दे रिजल्ट इन लीनियर मूवमेंट जस्ट लाइक आपकी ट्रैक्शन, कंप्रेशन, ग्लाइडिंग। ट्रैक्शन जब आप देते हो तो दोनों बोन्स एक दूसरे के लाइन में एक दूसरे से दूर होती है, कंप्रेशन में एक दूसरे के करीब आती है, लेकिन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड ट्रांसलेशनल movement. Then we have a bone movement, the corresponding joint movement, rotational curve. फिर rotational curve में भी standard and combined है। Standard occurring anatomical and occurring at a uniaxial joint. Uniaxial मतलब वो joint जिसका एक एक्सिस हो, एक प्लेन हो, दो मूवमेंट हो। जस्ट लाइक एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। एल्बो जॉइंट यूनिएक्सियल है, एक प्लेन है, तभी इसको यूनि एक्सियल, एक एक्सिस है, एक प्लेन है, एक एक्सिस है। प्लेन कौन सा है? सजाइटल। एक्सिस कौन सा होगा? कोरोनल एक्सिस, ठीक है। मूवमेंट अराउंड द इसके कौन सी होगी? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। नी जॉइंट है, एक एक्सिस है, एक प्लेन है, मूवमेंट कौन सी होगी? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। मल्टी एक्सियल, बाई एक्सियल, लेट्स सपोज एल्बो जॉइंट। अगर हम एल्बो जॉइंट के अदर टर्म में दें, रेडियोल्नर जॉइंट है। बाई एक्सियल में दो एक्सिस होंगे, दो प्लेन होंगे, मूवमेंट कितनी होंगी? चार। मल्टी एक्सिस मतलब ट्राई, जस्ट लाइक शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट पे आपकी 6 मूवमेंट्स होती है, ठीक है, क्योंकि हर प्लेन में वो मूवमेंट करता है। मल्टी एक्सिस है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी, ठीक है। उसी तरह ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट्स के, लीनियर मूवमेंट्स के कुछ नीचे नाम है। जस्ट लाइक लॉन्गिट्यूडनल बोन सेपरेशन, जिसको हम नाम देते हैं ट्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल बोन अप्रोक्सीमेशन मतलब करीब लाना, कंप्रेशन। पैरेलल बोन मूवमेंट जस्ट लाइक ग्लाइडिंग। रोटेशन ऑफ अ वर्टिब्रा बोन, एक वर्टिब्रा बोन जब रोटेट करती है, तो एनी मूवमेंट दैट अराउंड एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन मतलब हर मूवमेंट जो किसी एक्सिस के अराउंड हो। एक्सिस इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स द फल्क्रम, इन लैंग्वेज ऑफ द मेडिकल ह्यूमन बॉडी इज योर जॉइंट। मूवमेंट जॉइंट के अराउंड होती है, ठीक है। बोनी रोटेशन कैन बी प्रोड्यूस पैसिवली बाय एक्सिस और प्लेन का फर्क मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं। एक्सिस पे मूवमेंट होती है, मूवमेंट प्लेन में मूवमेंट होती है। लेट्स सपोज एक दरवाजा जब ओपन होता है तो वो एक डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो उसका प्लेन है। लेकिन जिस पे मूवमेंट हो रही है, जो रिंजेस लगे हुए हैं, हिंजेस लगे हुए हैं,
वो एक्सेस है उसका, ठीक है। उसी तरह ज्वाइंट की अगर मैं बात करूं तो एल्बो की सर्वाइकल की फ्लेक्शन एक्सटेंशन जिस ज्वाइंट पे होगी वो उसका एक्सेस है, जिस जिस डायरेक्शन में होगी वो उसका प्लेन है। प्लेन कौन सा है? सजाइटल, ठीक है। एक्सेस कौन सा है इसका? रिवर्स कोरोनल एक्सेस। देन यू हैव स्टैंडर्ड यूनिएक्सियल मूवमेंट, नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। anatomical bone movements we have. These movements begin at the zero position and they are very useful describing and measuring the test movement. मतलब वो मूवमेंट जो जीरो से स्टार्ट होती है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथड प्रोवाइड करेंगे आपको कंपेयर करने के लिए। जीरो से लेट्स सपोज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जब आप एक्सटेंशन करोगे तो 0 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है, जब तक 0 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पे नहीं लेके जाओगे आप फ्लेक्शन को डिटेक्ट कैसे करो? तो एक रेंज देने के लिए, ठीक है। देन मेरे ख्याल से सजाइटल प्लेन मूवमेंट्स, अच्छा, प्लेन और एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मैंने डेफिनेशन भी बता दी। अगर सजाइटल प्लेन है, एक्सेस इसका क्या होगा? फ्रंटल। अगर फ्रंटल प्लेन है, एक्सेस क्या होगा? सजाइटल। और तीसरा प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन, इसका एक्सेस क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल। तो अगर जो प्लेन सजाइटल प्लेन में मूवमेंट होगी वो एक्सेस सजाइटल प्लेन में मूवमेंट होगी, तो वो किसी एक्सेस पे भी तो होंगी, तो वो सजाइटल मूवमेंट की मूवमेंट प्लेन की मूवमेंट किस एक्सेस पे होंगी? फ्रंटल प्लेन पे। और सजाइटल पे हमेशा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होगी, चाहे जोन सी भी हो। शोल्डर की फ्लेक्शन हो तो भी इसी में आएगी, सर्वाइकल की हो तो भी इसी में आएगी, हिप की हो, नी की हो, सब की। तो दो ही मूवमेंट्स होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट, ठीक है। देन अब हम आ जाते हैं फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन है, एक्सिस कौन सा होगा? सजाइटल। फ्रंटल मूवमेंट में हमेशा साइड वे मूवमेंट होती है, एब्डक्शन, डायरेक्शन, साइड फ्लेक्शन, नेक की साइड फ्लेक्शन, आपके लंबर की साइड फ्लेक्शन। फ्लेक्शन वर्ड से ज्यादा वर्ड यूज करो बेंडिंग, क्योंकि फ्लेक्शन बना बेसिकली उसके लिए है, सजाइटल के लिए, तो कंफ्यूज ना हो। तो साइड में जो मूवमेंट होगी, एब्डक्शन, एडक्शन, साइड बेंडिंग, जिसको आप साइड फ्लेक्शन का नाम देते हो, इसीलिए फ्लेक्शन वर्ड हटा दो, साइड बेंडिंग का नाम दो, तो वो फ्रंटल प्लेन में होगी। लेकिन एक्सेस कौन सा होगा? सजाइटल। लास्टली वी हैव अ ट्रांसवर्स प्लेन, जो वर्टिकल। ट्रांसवर्स प्लेन में हमेशा रोटेशन होगी, आपकी जितनी भी रोटेशन है वो इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन सारी इसी में होगी, ठीक है। और वो एक्सेस कौन सा होगा? फ्रंटल या वर्टिकल एक्सेस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। देन वी हैव अ कंबाइंड या कंबाइंड या मल्टी एक्सेल बॉन्ड सेगमेंट, जो एक से ज्यादा बॉन्ड मूवमेंट्स होती है, ठीक है। जो मोर देन वन प्लेन या मोर देन टू प्लेन, बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो मोर देन वन। डायगोनल प्लेन है लेट सपोज आपके, तो वो किसी एक प्लेन में नहीं होती, दो प्लेन्स में, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन। एंड देन स्पाइनल, ये जो कंबाइंड मूवमेंट्स है जिसको हमने दो मूवमेंट्स को मिलाना, इनडायरेक्टली फ्लेक्शन के साथ रोटेशन मिला दिया, एक्सटेंशन के साथ रोटेशन मिला दिया, साइड फ्लेक्शन के साथ कॉन्ट्रालेटरल मिला दिया, तो ये जो कंबाइंड मूवमेंट्स है आगे चल के ये डिवाइड होती है कपलिंग और नॉन कपलिंग। कपलिंग और नॉन कपलिंग अभी अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में कि कपलिंग मूवमेंट, दो मूवमेंट्स को जब आप ए और बी दो मूवमेंट्स को मिलाते हो, रिजल्टेंट जो सी मूवमेंट है वो उसकी रेंज सबसे ज्यादा मिले और रुकावट आपको कम मिले उस रेंज को अचीव करने में, और एंड फील आपको सॉफ्ट मिले, तो वो आपस में ए और बी क्या होंगे? coupled with each other indirectly। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि when we have a good couple, let's suppose we have a more understanding मतलब medically more range, ठीक है। less misunderstanding means less restriction, this is how you can say। and then ultimately relationship goes very soft and firm, so end feel is the relationship। this is how you can explain when the two are the what we can say, they're non-coupled with each other, two persons are the non-coupled with each other, they have a very big misunderstanding, that is more restriction। very less understanding या relationship goes very less longer, so the less longer ज्यादा देर तक ना जाना, मतलब रेंज जो रिजल्टेंट रेंज मिलेगी that would be the very restricted या less, and ultimately relationship goes very hard and the relationship is the hand feel, so you find the end feel very hard। this is how you can say, बाकी definition लिखी हुई, ठीक है। so the coupled and non coupled एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, ड्यूरिंग द शोल्डर एबडक्शन रेजिंग द शोल्डर साइडवे देयर इज ऑफन द कपल मूवमेंट ऑफ द शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। जब आप शोल्डर की एबडक्शन करते हो तो शोल्डर की जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो अगर उसको साथ मिला दो तो आप जो ओवर द हेड मूवमेंट कर रहे हो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। लेट्स सपोज स्केपुलर ह्यूमरलिज्म, ह्यूमरस की मूवमेंट में अगर स्केपुला कंट्रीब्यूट ना करे तो आप फुल रेंज कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, टारगेटेड रेंज अचीव नहीं कर पाओगे। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन, ठीक है। एंड देन वी हैव अ नॉन कपल्ड, लेट सपोज, तो वही अंडरस्टैंडिंग है। नॉन कपल का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द नी एक्सटेंशन स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेग, द मोशन primarily occur at a knee joint without a significant involvement and influence from the adjacent joint such as the hip or
एंकल। सिमिलरली जब आप रिस्ट की फ्लेक्शन करते हो, बेंडिंग द रिस्ट डाउनवर्ड, द मूवमेंट प्रीडोमिनेटली कहां पर होती है? रिस्ट जॉइंट पे। तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, एल्बो और ये कोऑर्डिनेट नहीं करते, लेट्स सपोज, ठीक है। तो सोलो के तौर पे यू कैन अचीव। सो वेन एवर द टू मूवमेंट्स आर combined with each other and the resultant movement you are not getting the better one, let's suppose, and the restriction is more by using the surrounding structure as well, they are the non-coupled with each other. Okay, this is how you can explain in a cervical spine. Just to say, when a cervical rotation and the side bending to opposite side, when you rotate the cervical spine on one side and side bend and do on the opposite side, they are the non-coupled with each other. It means whenever you rotate on one side and side bend to opposite side, the resultant would not be the maximum range. Restriction would be more. Ultimately, they will get locked. Locked होंगे तो आप उसको unlock कर पाओगे. Whenever you do manipulation, what you do you rotation on one side and side bend on other side in order to get the lock होगा तो आप उसको manipulate कर पाओगे. Locking means restriction is more. Restriction ज्यादा है, it means they both movements are non-coupled with each other. This is how you can understanding the non-coupled. ठीक है? And understanding the non-coupled movement is very essential for analyzing and assessing the biomechanics of the individual joint action, joint impairment, identify the specific movements, deficits or problem. Then we have a joint rolling gliding, which is associated with the bone rotation. Bone rotation के साथ जो roll gliding associated है, उसको पढ़ना. joint roll gliding क्या है? rolling और gliding का होना. rolling और gliding को मैं ऐसे explain कर लूं कि लेट्स सपोज एक आर्टिकुलर सरफेस है, एक ज्वाइंट कम से कम दो आर्टिकुलर सरफेस से बनता है. एक आर्टिकुलर सरफेस पे आप मार्किंग रखो 1 2 3 4 5, और दूसरे आर्टिकुलर सरफेस जो उसका पार्टनर है उस पे मार्किंग रखो ABCDE, 1 2 3 4 5 ABCDE. अब जब एक ज्वाइंट आर्टिकुलर सरफेस दूसरे के साथ मूवमेंट करेगा तो डिपेंड करता है, अगर ऐसी मूवमेंट जिसमें 1 A के साथ मिले, B 2 के साथ मिले, C 3 के साथ, D 4 के साथ, E 5 के साथ, तो द वन आर्टिकुलर सरफेस इज रोलिंग ओवर द अदर. जो ऊपर वाला होगा, ठीक है, इज रोलिंग ओवर द अदर. बट व्हेन यू मूवमेंट इज काइंड ऑफ टेक्स प्लेस whenever the A of the superior articular surface meet with the 1, then meet with the 2, then meet with the 3. मतलब एक ही आर्टिकुलर सरफेस का A दूसरे आर्टिकुलर सरफेस के बाकी कंपोनेंट्स के साथ मिलता जा रहा है, द वन सरफेस इज रोल ग्लाइडिंग ओवर द अदर. तो रोलिंग में क्या होगा? ए के साथ A1 के साथ मिलेगा, B2 के साथ, C3 के साथ, D4 के साथ, E5 के साथ. बट ग्लाइडिंग में क्या होगा? एक ही बंदा A या B कोई भी एक पकड़ लो, वो 1 के साथ मिलेगा, फिर 2 के साथ 3, तो इज बेसिकली ग्लाइडिंग ओवर ईच अदर. तो रोलिंग और ग्लाइडिंग की डेफिनेशन है जो मैंने एक्सप्लेन कर ली, और ये यहाँ पर एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है. और ज्वाइंट रोलिंग कलेक्टिवली हो सकता है. हाँ, कॉन्वेक्स कॉन्केव, जो मैं आपको पिक्चर बता रहा था, ये आप समझ सकते हो कि रोलिंग द कॉन्वेक्स सरफेस एंड कॉन्केव सरफेस, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है. अब जो ऊपर वाला सरफेस है, जहां पे लिखा हुआ रोलिंग कॉन्वेक्स सरफेस, तो ऊपर वाला जो है कॉन्वेक्स है, और रोलिंग कॉन्केव में ऊपर वाला जो है वो कॉन्केव है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल रोलिंग ग्लाइडिंग, एबनॉर्मल रोल ग्लाइडिंग भी हो सकती है जहां पे रोलिंग हो रही है बगैर ग्लाइडिंग के. तो ज्वाइंट नॉर्मल रोलिंग ग्लाइडिंग तब होगी जब रोलिंग के साथ साथ ग्लाइडिंग हो. प्रॉपर तब होगा ना जब रोलिंग हो रही है प्रॉपर ग्लाइडिंग के बगैर, तो वो एबनॉर्मल रोलिंग ग्लाइडिंग में आएगा. और वो किसी भी ज्वाइंट की एबनॉर्मलिटी या डैमेज की वजह से भी हो सकता है, या डैमेज करवा भी सकता है इनडायरेक्टली. So therefore, in the cases of the restricted joint movement, तो irregular rolling gliding, abnormal rolling gliding आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है. और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एबनॉर्मल रोलिंग ग्लाइडिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं. जॉइंट की मिस अलाइनमेंट, लेट्स सपोज जॉइंट आपस में अलाइंड ही नहीं है, दोनों के आपस में सेम शक्ल है, कॉन्वेक्स कॉन्केव है ही नहीं, दोनों कॉन्वेक्स हैं या दोनों कॉन्केव है, तो इट आल्सो कैन कॉज द प्रॉब्लम. मसल इंबैलेंस है, जॉइंट ठीक है लेकिन मसल्स वीक है या ज्यादा टाइट है, तो वो भी जॉइंट एबनॉर्मल. जॉइंट डीजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, लेट्स सपोज कोई इंजरी है, कोई ट्रॉमा है, वो भी एबनॉर्मल रोलिंग ग्लाइडिंग, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, नर्व डिसफंक्शन करवा सकते हैं, ठीक है. लास्ट वी हैव अ ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्टिब्रल. ऊपर रोटेशन थी, ना कम टू द ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मूवमेंट होगी एक बोन की विथ रेस्पेक्ट टू द अदर वन. मैं आपको पिक्चर दिखा. दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ वन वर्टिब्रा. एबनॉर्मल नहीं है. एबनॉर्मल अगर आप बात करो द स्पॉन्डिलोसिस थीसिस, जिसमें वन वर्टिब्रा डिस्प्लेसेस एबनॉर्मली विथ रेस्पेक्ट टू द लोअर वन. लेट्स सपोज L4 L5 है,
L4 ऊपर है, L5 नीचे है, तो L4 whenever L4 displaces whether anteriorly or posteriorly, it is called spondylolisthesis. It displaces anteriorly, it's called anterior listhesis, and whenever displaces posterior, it's called posterior listhesis. So the translation of one vertebral bone with respect to the other. Longitudinal axis bone rotation, just like आपके पास longitudinal axis में bone translation कौन कौन सी होती है? Separation, जब आप एक surface को vertebra को pull करते हो दूसरे with respect to the other one, just like traction. Approximation, just like compression, ये हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. Sagittal axis bone translation कौन सी होती है? Ventral dorsal glide, मतलब AP glide, आसान लफ्जों में ventral मतलब anterior, dorsal मतलब posterior, AP gliding. Frontal axis bone ट्रांसलेशन कौन सी होगी? लेटरल ग्लाइडिंग. ठीक है. So last topic we have a joint play that is associated with the bone translation. तो bone translation जो है वो it basically generate a specific traction, compression, traction मतलब separation, compression, approximation या gliding movement which are very within the treatment plan but very important. So that these translates movement very important for facilitating the smooth and painless execution of active या physiological या functional movement. So thank you so much. We are done with the chapter 2. And lastly, again, I would say don't forget to put your comment, put your feedback as well. If you are not, what I can say, if you have any kind of the problem or any book, any chapter you want, so that I can put a lecture on it, I make a video on it. You also can put it on comment, and don't try to forget the putting the your feedback, your precious, valuable feedback on my social media platform. Search Center of Manual Therapy on Facebook, Google, and put your feedback. If you want any other book, so that I should start the series, and you also can put in the comments. I will try my best. I need to complete this one. So let's end the chapter 2, and next video would be on the chapter 3. Thank you so much.